This conference will now be recorded. Very good morning, all of you. Today we are going to cover the next topic of the chapter. The chapter which was going on is correlation analysis, and already we have done about covariance and correlation. So first we did correlation, formula for correlation. After that we did Carl Pearson's coefficient of correlation. तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं क्या आप लोगों को? आपने शायद बनाया होगा. क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ Yes, लीजिए. sir. चलिए तो फिर आगे आर्टिकल पढ़ते हैं. 25.4 लास्ट आर्टिकल है. जल्दी फिनिश करके क्लास जल्दी ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. लेट्स बिगिन विद कनिष्का. रीड कनिष्का, स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन. Sir, can you tell the page number? Page number is 25.17. Okay. Spearman rank correlation. Sometimes some variables in statistics cannot be measured quantitatively, but can be measured qualitatively. For example, beauty, honesty, morality, etc. are variables which cannot be measured in quantitatively. In such cases, we assign ranks to the individuals possessing these attributes or characteristics. The best individual is given rank 1, the next rank 2, and so on. Rank correlation is the coefficient of correlation between different ranks attained by a group of individuals in two characteristics or attributes. Let xi, xy, I is equals to 1, 2, n be the ranks of the ith individual in two characteristics x and y respectively. Then the coefficient of correlation between the ranks xi's and yi's is called the rank correlation coefficient between the characteristics x and y for the group of individuals. देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कोरिलेशन तो आपको निकालने आता है बिटवीन टू क्वांटिटीज आता है. लेकिन ठीक है, अभी तक से हमने एक्स और वाई दो कोई भी क्वांटिटी ले ली, उसके बीच में हमने कोरिलेशन निकालना सीखा. अभी हम क्या कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज का रैंक निकालेंगे. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कुछ क्वांटिटीज, कुछ क्वालिटीज हैं जिनमें हम रैंक जो है निकाल सकते हैं, लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी. ये कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको भी कैलकुलेट किया जा सकता है. लोग कहते हैं कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट ये भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है. आप इसको आगे आप देखेंगे, काफी मजेदार इसमें चीजें आपको दिखाई देंगी. तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी क्वांटिटी है, जो भी कुछ आपको मेजर करना है, उसके रैंक निकाल लीजिए, और उन रैंक में क्या रिलेशन, उसी को हम बोलते हैं रैंक को रिलेशन. जो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा, निकाला, जो जिन्होंने ये बात रखी, उनका नाम है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. इसी नाम से ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला. सबसे पहले कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे. कोवेरियंस और कोरिलेशन के फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. आज हम देखते हैं कि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन स्पियर्समैन फॉर्मूला भी बोला जाता है इसको, फॉर द रैंक कोरिलेशन. और ये जो है वो आपके बुक में लिखा है, पेज नंबर 25.19 में देख लीजिए. रैंक कोरिलेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, ये आपका फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा di स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पूरा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1. n तो समझ गए होंगे कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए कनिष्का वापिस से. 25.19 पेज है. इफ इन ए बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. If in a bivariate distribution ranks are given, we may use this formula directly to compute Spearman rank correlation coefficient. But when we are given the actual data and not the ranks, then we assign rank 1 to the highest value, rank 2 to the next highest value, and so on. We can also assign rank 1 to the lowest value and rank 2 to the next lowest value, and so on. But whether we start assigning ranks with the highest value or the lowest value, we must follow the same procedure in case of both the variables. Following examples will illustrate. ओके, वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, संस्कृति अग्रवाल.
पेज नंबर 25.20 एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए. When ranks are not given. When ranks are not given, example 3, the marks obtained by 9 students in physics and maths are given below. Marks in physics 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6, 28. Marks in mathematics 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4 and 31. Compute their ranks in the two subjects and the coefficient of correlation of ranks. रैंक में क्या कोरिलेशन है वो हम देखने वाले हैं. तो पहले तो फिजिक्स और मैथ्स की स्कोर हम लिख लेते हैं जैसा हम पहले करते थे, कोई चेंज नहीं है, मार्क्स लिखते जा रहे हैं 47, 45. बहुत ध्यान से देखेंगे, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और ये जब आप समझ भी जाएंगे तो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा. आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है कंसेप्ट आप समझेंगे. ठीक है. So these are the data 9, 12, 9, 6, 4, लास्ट डेटा आपका 28, 31 मेरे ख्याल से डेटा है. अभी रैंक की बात करते हैं, तो रैंक में हम लिख दो यहाँ पे रैंक इन एक्स लिख लेते हैं. ठीक है. अब यही चीज हम एक्स आई बना लेते हैं और वैसे ही एक रैंक निकाल लेते हैं, रैंक इन वाई निकाल लेते हैं. ठीक है. इसको वाई आई बोल रहे हैं. तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें ढूंढ लीजिए. एक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला कौन है जो मैथ्स में लाया है? तो 47 लाया है. 47. तो इस तरह से रैंक लिखते हैं. उसके बाद मेरे ख्याल से 43 वाला है, यहाँ पे सेकंड लिख लो. हाँ, फिर इसका 35 वाला होना चाहिए. तो इस तरह से आप ये पूरा रैंक लिख लीजिए. ठीक है. बुक में आपके लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशन पे जाएंगे आपको वो दिखेगा. 6 पे कौन है, 7 पे कौन है. ठीक है. तो रैंक समझते हैं आप, जैसे क्लास में भी होता है ना, हाईएस्ट कौन लाया है, सबसे कम कौन लाया है, सबसे ज्यादा कौन लाया है. तो 9 स्टूडेंट है, सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 6 नंबर भी किसी ने लाया है. फिजिक्स में भी ऐसे ही कोई मार्क्स लेके आए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला इनमें से 49 दिख रहा है मुझे. सो 41 इज दिस, द नेक्स्ट वन इज 45 आई थिंक. ठीक है. इस तरह से आप वैल्यूज इसमें असाइन कर दीजिए, सारे कौन कौन किस किस रैंक पे आया हुआ है. ठीक है. 6 है, देन ये 8 है, 7 है, 9 पोजीशन, 4 पोजीशन. होता है ना कि क्लास में 9 बच्चे हैं. देखो अब ये अपना रिजल्ट का भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं. अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने बोलूं, एक प्रैक्टिकल करने बोलूं, तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं. ठीक है. कि आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट का स्कोर ले लिया, सपोज अपने क्लास का ही ले लिया, अप्लाइड मैथ्स में तुम लोग 9 या 8 या 9 लोग हो. ठीक है. कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, आप इसको करके देखना आज. ठीक है. काफी मजा आएगा. पूछना तेरा मिड टर्म में कितना नंबर था, सबका पूछ लेना आज. ठीक है. पूछने के बाद देख लेना कौन कितना होशियार है, रैंक वैंक सब निकाल लेना. ठीक है. और तो खूब मजा आएगा तुम लोग को. वहां जब स्कूल खुलेगा ना तुम लोगों का, या बाकी दोस्तों को पूछ लेना. ठीक है. तो ये ऐसा उनके साथ मैथ्स खेलना, उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, तुमको पूरा कैलकुलेशन समझ में आते जाएगा. तो ये तुम यहाँ तक पहले रैंक निकाल लिए. ठीक है. अब ये रैंक निकालने के बाद क्या करो कि जो फॉर्मूला हमने बताया था, तो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले पे जो है आप सबसे पहले डी निकालते हो. तो डी क्या है? डिफरेंस है. रैंक में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है? एक्स आई माइनस वाई आई, दोनों के रैंक में क्या डिफरेंस आ रहा है. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3 और 5 का जो रैंक है उसमें -2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है. तो ये जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? मतलब सेम बच्चा है वो. जैसे सपोज ये पहला पेयर है 35, 39, तो ये कोई स्टूडेंट है. ठीक है. से ये अगर अदिति है. ठीक है. से ये अगर संस्कृति है, ये कोमल है, ये कनिष्का है, ये निकिता है, ये जय जैन है, ये ऐसा सब नाम लिख लो, सब पेयर, ऑर्डर पेयर. ठीक है. और सबके ऐसे रैंक निकाल लो सब्जेक्ट वाइज. तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 और 8 में डिफरेंस -1 है. अब ये फिजिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है, मैथ्स में सेकंड पोजीशन पे है. तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये 9 पोजीशन पे भाई, ये 4 पोजीशन पे, मतलब ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा कोई ऐसा गैप नहीं आ रहा है. डिफरेंस दिख रहा है ना, 1 2 का ही डिफरेंस आ रहा है. होता है कि जो बच्चा टॉपर होता है सब में टॉप कर जाता है, काटो में सेकंड टॉपर रह जाता है. सो आप लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. सो दिस इज 1. तो ये यहाँ तक डिफरेंस समझ में, रैंक में डिफरेंस निकाल लिया. अब उसी डिफरेंस का डी का स्क्वायर कर लो. स्क्वायर किया तो ये 4 4 4. ठीक है. ये 1 0 1 1 1 0 0 ऐसा आ गया. अब इन सबका सिग्मा निकाल लीजिए. कॉपी में करिए, तो आप कॉपी में कर लीजिए. सिग्मा फॉर्मूला लगाने बोला था ना,
तो रैंक निकालना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो R 1 माइनस 6 टाइम्स आपको करना है, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। एंड देन n, यू नो व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लाइक आपके क्लास में कितने लोगों का आप ये कितने सैंपल पॉइंट आपने लिए, कितने स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास में 9 स्टूडेंट है, तो 9, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक नंबर आपको मिलेगा 0.9। यही आपका गोल था, यही आपको निकालना था। दिस इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है क्या? Yes, sir. कैलकुलेशन कर पाएंगे? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, और मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्या है निकिता, पढ़िए क्वेश्चन एग्जांपल 4 का। Yes. इसमें आप Calculate लोगों को spearmint. जस्ट अ मिनट, इसमें आप लोगों को क्या बनाना है, तो आप लोगों को एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 बनाना है, ठीक है, बाकी आपको यहाँ से और बहुत कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको बताऊंगा क्या करना है, सिर्फ 2 ही एग्जांपल आप सॉल्व करिए, एग्जांपल 3 एंड 4। या एग्जांपल 4 रीड करो निकिता। Calculate spearmint's rank correlation coefficient between the advertisement cost and sale from the following data. तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स, ये तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोई नया मोबाइल मार्केट में लॉन्च होता है, जगह जगह मोबाइल के होर्डिंग्स आ जाएंगे, आईफोन की एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाएगी, और जो भी आप अपने आसपास देखते हैं टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लोकल बिजनेसेस के, सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट खूब करते हैं लोग, ठीक है। दिवाली पे देखना बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप वाले अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, साड़ी दुकान वाले करते हैं, गुपचुप ठेला वाले नहीं करते देखा, लेकिन अभी तक करते होंगे वो लोग, आई डोंट नो। सो एडवर्टाइजमेंट कुछ करते हैं, और सेल्स उसके अकॉर्डिंग ये इन लैक्स रुपीज 1000, तो 1000 में एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर पे, सपोज एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कोमल सॉरी बेचारी, सेल्स इन लैक्स ये भी दे दिया है, ठीक है। तो ये इनका रैंक निकाल लिया, और इस तरह से इनका एक रैंक का कोरिलेशन का जो कैलकुलेशन था, रैंक कोरिलेशन, या फॉर्मूला आपके हाथ लग गया, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। इज इट क्लियर? आगे चल के हम इनको एनालिसिस भी करेंगे, क्या मीनिंग है इनके, क्या मायने हैं, अगर कोफिशिएंट ये बताता है तो क्या होगा, अगर कोफिशिएंट वो बताए तो क्या होगा। फिलहाल क्योंकि हम कैलकुलेशन पार्ट देख रहे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, और फिर हम आगे अब थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो 2 पार्ट में है, कुछ पार्ट आपको 12th क्लास में भी जाके पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी जो आपने 11th में पढ़ा है, आगे चल के प्रोबेबिलिटी आपको 12th में भी हायर लेवल पे पढ़ने, तो ऑलमोस्ट जो टॉपिक आप यहाँ 11th में पढ़ रहे हो, वही सेम टॉपिक आपको 12th में पढ़ने, बट एडवांस लेवल पे पढ़ने हो, ठीक है। तो वो 12th से भी कनेक्टेड है ये सारी चीजें, आपको ये नहीं सोचना है कि 11th है तो क्या हो गया, लोकल एग्जाम है तो क्या हुआ, वो आगे चल के 12th में भी तो काम आएगा, ठीक है। तो उस पर्पज से आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट का नेचर बहुत अलग है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आई मीन काफी यूजफुल भी है, बट हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है इसको, तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस होना चाहिए, और कनेक्टिविटी है टॉपिक्स में, इसलिए आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा थ्योरी को एडवांस करते हैं, और क्या वेरिएशन आते हैं क्वेश्चंस में वो देखते हैं, लेट्स सी। सो कोमल जैन, वुड यू लाइक टू रीड द पेज नंबर 25.23, आर्टिकल 25.4.2, adjustment coefficient of Yes, rank sir. correlation of repeated ranks. If any two or more individuals are bankrupted equally in any classification with respect to characteristics A and B, or if there is more than one item with the same value in the series, then the Spearman formula for calculating the rank correlation coefficient does not work, since in this case each of the variables x and y does not assume the value 1, 2, 3 till n, and consequently x bar is not equals to y bar. In such a case, common ranks are given to the repeated items. This common rank is the average of the ranks which these items would be assumed had they different slightly from each other. The next item will get the rank next to the rank already assigned. As a result of this, following adjustment or correlation is made in the Spearman's rank correlation formula. In the formula, we add the factor m into m square minus 1 upon 12 to sigma di square, where m is the number of times an item is repeated. This correlation factor is to be added for each repeated value
in both X series and Y series. The formula can thus be written as R equals to 1 minus 6 sigma di square plus m into m square minus 1 upon 12 plus m into m square plus 1 upon 12 plus dot upon n into n square minus 1. Following example will illustrate the use of above formula. ओके ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये है कि भाई ठीक है सर रैंक निकालने बोले, लेकिन हो सकता है ना कि क्लास में दो लोगों की रैंक बराबर हो जाए, आउट ऑफ 90 हो सकता है दो लोगों के 80 मार्क्स आ जाएं, तब उनका रैंक क्या होगा, फिर क्या उसमें चेंजेस आएंगे, तो ये कहानी उसी के बारे में, ठीक है, इफ रैंक्स आर रिपीटेड. सो लेट्स रीड एग्जांपल नंबर 1, अदिति बंसल. Yes. Example 1. Find the rank correlation coefficient for the following data: X 68, 64, 75. हाँ ठीक है, देखिए ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना, सेम क्वेश्चन है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने, जो इसके पहले हमने एग्जांपल 4 बनाया 5 बनाया, बिल्कुल वैसे ही है, बस चेंज कहाँ पे कि कुछ डेटा रिपीट हो रहे हैं. तो आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ रैंक में कि रैंक जो है एक्स आई की कितनी आ रही है, रैंक कितनी आ रही है एक्स की, जैसे आपको एक्स और वाई में कुछ रिपीटेड दिख रहा है क्या, जिनकी सेम रैंक है बताओ तो एक्स और, हाँ 68. 68 है, कितने बार आया 68 तो एक ही बार है, 75 दो बार दिख रहा है, देख लो, नहीं वैसा रिपीट, एक्स एक्स में रिपीटिशन, वाई वाई में रिपीटिशन, मतलब ऐसा 75. जैसे जैसे ये एक्स आपका मैथ्स टीचर वाला है, ठीक है, वाई आपका फिजिक्स टीचर वाला है, तो एक्स मैथ्स टीचर आया कि भाई क्लास में देखा सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, खड़े हो जाओ बोले, तो दो लोग खड़े हो गए, कनिष्का भी खड़ी हो गई और संस्कृति भी खड़ी हो गई, 75 वन किसको बोल रहे हैं, तो ये वैसे ही कुछ है, नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट रैंक तो 80 है और सेकंड हाईएस्ट 75 दिख रहा है आप लोगों को, 80 का रैंक 1 है, Yes, sir. बट अब 75 दो बार आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 और 2 तो नहीं बोल सकता ना भाई, तुम भी 2 हो तुम भी 2 हो तो गलत हो जाएगा, तो इसको 2.5 को 2.5 रैंक दीजिए, क्लियर है क्या, वो इस तरह से निकालते हैं कि सेकंड और थर्ड पे आ गया तो 5/2, तो Yes. सेकंड और थर्ड दूसरा डेटा 5/2 ना 2.5 ऐसा आ गया. अब बोलेंगे सर और भी तो रिपीट हो रहे हैं, देखो 64 3 बार रिपीट हो रहा है, 64. Yes. है ना, अब सीधा 3 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, अब सीधा 4 आएगा, देखो फोर्थ पोजीशन पे 68 है, दिख रहा है, फिर हम Yes, जैसे sir. नीचे आते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कोई नहीं है, 64 आता है और 64 एकदम चलते रहते हैं, पांचवें छठे सातवें नंबर पे, तो तीनों का एवरेज पोजीशन या एवरेज रैंक जो है वो 6 नंबर आते हैं, देख लो 5 6 7, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, 6 ही आएगा, क्लियर है क्या, कुछ समझ में आ रहा है, Yes. तो इनका कैसे निकालना है वो दिख रहा है आपको, तो रैंक यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि रैंक 1 है, देन सीधे 2.5 है, 2.5 है, देन नेक्स्ट रैंक जो है वो सीधे 4 आया, दिखा आपको, 4 के बाद 6 आया, Yes, sir. 5 6 7 है, समझ जाओ. अब अगला जो आएगा 8th पोजीशन पे आएगा, 8th पोजीशन पे 50, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. okay, am I audible? Yes. Yes. So I Yes, think sir. Yes, sir.
देयर इज सम एरर इन योर बुक ना, कि वहां पे 48 वाले को 10th रैंक दे दिया और 45 वाले को 9th रैंक दे दिया, कुछ गलत है ना? 48 पहले आएगा 49 से। हेलो, एक्स वाले Yes, में sir. देखिए, है ना, सही बोल रहा हूँ ना? तो वो उसमें कुछ एरर है, वो ठीक कर लीजिए आप लोग कॉपी में पेंसिल से। एंड देन सेकंड में हम चलते हैं फिजिक्स के स्कोर में। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन लाया फिजिक्स में? किसका है सबसे ज्यादा? देख के बताओ। 81। हाँ 81 1 है। 81। उसके बाद भी कोई है? 70 वाला सेकंड स्कोरर है, हाईएस्ट सेकंड स्कोरर, ठीक है। उसके बाद कौन है थर्ड पे? तो 68 दो बार आ गया, तो इसीलिए 3.5 आया, दो बार आया है ना। तो ये 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 और 4 हो गया। 5th पोजीशन पे 62 वाला है, 6th पोजीशन पे देखो 60 वाला है कोई। तो इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, उसी को ऐड करना है। दोनों सीरीज मिला तो कहाँ रिपीट हो रहा है वो थोड़ा देखिए आप लोग, कि जैसे कि अभी अब आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि R इज इक्वल टू 1 - 6, DI वगैरह तो सब निकाल लिया, डिफरेंस वगैरह सब निकाल लिया, रैंक, ठीक है। तो DI आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 72 जो है, DI स्क्वायर आ रहा है 72, ठीक है। तो ये 6 जो है वो खाली इसमें मल्टी। अब यहाँ पे जो है आपको जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा है, रिपीट कितने बार हुआ है? एक्स सीरीज में 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 लिखना है। तो 2 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12। एक आपने देखा कि 3 बार भी रिपीट हुआ है डेटा, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार रिपीट हो रहा है, वही m है यहाँ पे। तो अब अभी देख लीजिए, ठीक है। एंड देन y सीरीज में भी एक चीज रिपीट हो रहा होगा। y सीरीज में क्या रिपीट हो रहा है, देख के बताओ। 68. 68। अभी 2 बार रिपीट हो रहा है, y सीरीज कभी आप 2 बार रिपीट, तो 2 स्क्वायर बाई 12 ये कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ये इतनी सारी चीजें जो है ये रिपीट वाली चीजें हैं। अब इनको अब टोटल में अपॉन में, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस ये कैलकुलेशन जो है ब्रैकेट के बाहर है। तो ये तीनों जब कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो क्या आता है वो देख लेते हैं। तो 72 DI स्क्वायर है, इनको जब हम करते हैं तो ये 3 आता है, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो इन तीनों का कैलकुलेशन 3 आता है, आप करके देख लीजिए। एंड इस तरह से आपको कोफिशिएंट जो मिल रहा है, रैंक कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट मिल रहा है, वो ये है, स्पियरमैन्स रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए एकदम पूरी बात, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, क्लास खत्म करेंगे इसके बाद, जहां पे डाउट होगा पूछ लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए, निकिता अग्रवाल। Find the Spearman's coefficient of rank correlation between marks obtained in mathematics and economics in a group of 10 students. चलिए, ये आपका मैथमेटिक्स का स्कोर मैं एकदम लिख रहा हूँ टॉप में, ठीक है। ये मैथमेटिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया। चलो नंबर लिखते हैं। तो ये पहला स्टूडेंट वाइज है ये, ठीक है। सपोज ये आपके मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के, ठीक है। निकिता 30-50, जय जैन 20-40, ठीक है। देन कनिष्का गुप्ता 40-40, सुमित्रा 50-45, मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ, अदिति 20। तो ये उनके मार्क्स हैं, आप इस तरह कुछ समझते चलिए, ठीक है। रौनक 20-30, आप ताकि कनेक्ट कर पाए 30-15, और जो नाम छूट गए हैं अर्चित, ठीक है 50-50। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 9 से ज्यादा है डेटा, तो अब आपको जो दिमाग में आ रहे हैं नाम वो सब आप जोड़ लीजिए। ये देखो मैथ्स में कोई 0 ले आया, मतलब एब्सेंट रहा होगा पक्का। तो ये इस तरह से आपके कुछ स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है मेरे ख्याल से। कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स। 10 students. 10 इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब इनका रैंक निकालेंगे, तो मैथ्स का रैंक निकाल लेते हैं भैया पहले। मैथ्स में टॉपर कौन है, इकोनॉमिक्स में रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक का नाम XI है, एक का नाम YI है, आप देखते चले साथ में। देखो यहाँ पे टॉपर कौन है मैथ्स में,
तो 50. ऐसा 50 लाने वाले 2 लोग हैं, देखो 50. पता चल रहा है 2 लोग टॉप कर दिया, अदिति बंसल भी टॉप कर दिया और कोमल जैन भी टॉप कर दी, तो 1.5 आ गया इनका रैंक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इस तरह से ऐसे ही Yes. बाकी तो अब आप देखो 7.5 फिर से 2 बार आ गया 2020। तो ये 7.5 क्यों आ रहा होगा आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 7.5। बाकी के रैंक आप देख लेंगे, मैं वही ले रहा हूँ जिनका रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाले 2 बार रिपीट हो गए, ठीक है। और उधर भी देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं, YI में कितने रिपीट हो रहे हैं? 8.5 40. 8.5 आ रहा है एक, है ना? 8.5 आ रहा है और 3.5 आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो वहां पे कितने रिपीट हो गए? मैथमेटिक्स में भी कोई तीसरा डेटा है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। कौन सा डेटा है जो 3 बार रिपीट हो रहा है? 30 है, 30. देख लो आप। तो जो रिपीटेशन वाले कैलकुलेशन है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इसी को करेक्शन बोला जाता है, ठीक है। टोटल करेक्शन फॉर मैथमेटिक्स। तो करेक्शन क्या क्या हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। ये ऐड होने वाला है, तो 2 बार रिपीट होगा तो 2, 3 बार रिपीट होगा तो 3 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो कोई एक चीज डेटा है 7.5 वो भी आ रहा है, तो उसके लिए फिर से हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो मैथ्स में क्या करेक्शन हो रहा है? मैथ्स में 3 करेक्शन हो गए। देन टोटल करेक्शन इन इकोनॉमिक्स वो भी निकाल लेते हैं। इकोनॉमिक्स में भी कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 3 डेटा रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको सीधा लिख लो, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 112 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिए। तो इसका आंसर आ रहा है टोटल जो करेक्शन है 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल करेक्शन मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स में क्या करेक्शन होगा वो मिल जाएगा। दैट इज अबाउट हाउ मच? 9/2, दैट इज 4.5। Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4.5 आपके Yes, सीधे sir. फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा, वो करेक्शन हो जाएगा। और ये जैसे 6 सिग्मा DI स्क्वायर वो तो करेंगे ही करेंगे। अब बस यहाँ DI स्क्वायर जहाँ करते हैं वहीं पे आपको ये क्या कर देना है? प्लस कर देना है। प्लस 4.5 फाइनल एडजस्टमेंट में लिख रहा हूँ वहां पे, ताकि फॉर्मूला बहुत बड़ा ना दिखे। एंड 10 के बारे में पता है कि वो नंबर है। तो ये जब पूरा कैलकुलेट करते हैं देन यू गेट 6.333। तो ये समझ में आया कि रैंक जब रिपीट हो तब कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, और रैंक जब रिपीट नहीं हो तब कैलकुलेशन क्या करना है। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो आपको टोटली कितने क्वेश्चन बनाने? हाँ बोलिए। सो ये वाले टेबल में जो जैसे 33 बार रिपीट हो रहा था, तो सब वो उसका जो आंसर निकाले थे कुछ पॉइंट में से, वो कैसे निकाले थे? देखो अगर डेटा 3 वाला है तो 555 दिख रहा है आप लोगों को। 5th पोजीशन पे भी 30 आ रहा होगा, 6th पोजीशन पे भी 30 और 4th पोजीशन पे भी 30 आ रहा होगा। देख लो आप, 4th 5th और 6th तीनों पोजीशन पे 30 आ रहा है। Yes, sir. अब इन तीनों का एवरेज क्या है? इनके पोजीशन का एवरेज क्या है? जैसे 2 लोग हैं क्लास में, 1 और 2, तो 1 भी नहीं बोलूंगा 2 भी नहीं बोलूंगा, दोनों का बोलूंगा। इनका रैंक 1.5 1.5 है। लेकिन अगर कोई 5 4 6 पोजीशन पे तो 3 से डिवाइड करूंगा सबको ऐड करके, तो कितना आ रहा है? 15/3 दैट इज 5। तो इनका रैंक इसीलिए 5 दिखा रहा है। आप समझ आए यस कि नहीं आ रहा है? यस एवरेज निकाल लेना है। Yes, जैसे sir. Yes, जैसे sir. 2 लोग हैं तो 1 और 2 नहीं बोलेंगे, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3.5 3/2 इज 1.5। तो बोलेंगे ये 1.5 1.5 रैंक है इनका। वैसे देखो 7.5 दिखा रहा है, मतलब एक 7 पोजीशन पे एक 8 पोजीशन पे। अब किसको 7 बोले किसको 8 बोले? अरे भाई बोल नहीं सकते ना, दोनों का नंबर बराबर है। तो बोलते हैं कि दो रैंक है यहाँ पे, एक 7.5 है एक 7.5। क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. ये रैंक निकालने का प्रोसेस था। तो क्या क्या सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आपको पहले टिक कर लीजिए। पेज नंबर 25.25 से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 2। और इसके पहले मैंने बता दिया है 25.20 में एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4। बस ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इस एक्सरसाइज से बनाइए आप, काफी है आपके लिए। चैप्टर खत्म करते हैं और फॉर्मूलों की आप प्रैक्टिस करिए, इनका एनालिसिस आगे चल के होगा और भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मंडे से कल से हम जो है वो नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सिलेबस काफी बहुत है कवर करने के लिए और आप लोगों का एग्जाम जल्दी होना है।
और हमको सिलेबस भी जल्दी खत्म करने हैं क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन भी होनी है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.